Assalamu alaikum everyone. Is my voice clear to everyone? All right, so how are you all? I'm fine, alhamdulillah. Thank you for asking. All right, so first, just let me welcome you at NS Training. I hope you guys learn a lot from this course. My name is Amna Mohammed Jamil, and I will be your graphic designing instructor in this course. Okay, so just let me show you my profile. I have been in graphic designing field for more than 3 years. Okay, and this is my portfolio. Okay, half of my portfolio, not full. Okay, I have mentioned my projects here. Okay, so business card, brochure, poster designs, bottle designing, okay, product designing, posters, okay. Some orders are from international, some are from national, okay, local orders, some are international orders, and some are competition work, illustrations, logo designing, okay, package designing, poster designing, then we have post designs also, website designing, business card, posters, and stationery means branding. Okay, so this is some of my work, and let me show you some other. So these are some of the wedding cards. Okay, like this, and some other international orders. Okay, and some other poster designs. Okay, so this is some of my work. Okay, that I've shown you guys. एंड इसी तरह का आप लोग भी सीखेंगे। ठीक है, अपने ओवरऑल कोर्स में किस तरह से आपने अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग में ये सब चीज़ें क्या क्या चीज़ें आप क्रिएट करेंगे। ओके, यही सब चीज़ें हमारा कवर होगा। ओके, इसी से मिलते जुलते हम डिज़ाइन सीखेंगे। ऑलराइट, सो एज यू गाइस नो, टुडे इज योर ओरिएंटेशन क्लास। ओके, फर्स्ट क्लास से इंट्रोडक्शन क्लास होगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत टच देंगे अपने टूल्स को। ठीक है, ओके, सो जैसे हम ओरिएंटेशन क्लास है तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने अपने ओवरऑल कोर्स में कवर क्या क्या करना है। ठीक है, आउटलाइन, ताकि आप लोगों के भी एक माइंड मैप बन जाए कि आप सीक्वेंस वाइज किस तरह से क्या सीखेंगे। ओके, सो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया है, सो यू मस्ट हैव नो कि ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली होती क्या है। किसी को आइडिया व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? It's there is no right and wrong answer. It's an interactive course. Okay. Chat box इसलिए ओपन है कि आप लोग उसमें जब मैं आप लोगों से सवाल करूँ यू आंसर। ओके, और उसमें ये नहीं देखना कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ। इट्स सीखने के लिए आए हैं। सो जस्ट टेल मी व्हाट इज इन योर माइंड रिलेटेड टू ग्राफिक डिजाइनिंग। Anyone? There are 21 students. Art based, okay. Create images that look real and logos, yes. Creativity of designs, all about graphics and animations, yes. Every type of design from brand to brochures, eye captivating ideas. Exactly. So basically, all of you guys are correct. This all comes under the category of graphic designing. Okay, so just let me give visual communication of art, creativity of art and designs, yes. Text, pictures, combinations in advertisements, etc. Okay, exactly. So let me give you a brief introduction, brief definition of graphic designing. That is, graphic designing is a visual art. All the drawings and art that you create on screen using different softwares is called graphic designing. In simple words में हम ये कह सकते हैं कि graphic designing एक visual art है। जो भी drawing, art, sketch, illustration हम create करते हैं laptop पे using different softwares is called graphic designing. It includes poster design,
ब्रोशर डिजाइन, बिजनेस कार्ड डिजाइन्स, पोस्टर डिजाइन्स, यूट्यूब थंबनेल डिजाइन्स, पोस्ट सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन्स, लोगो डिजाइन्स, एवरीथिंग। आप अपने इवन इर्द गिर्द भी देखेंगे आपने, आपके कितने लैपटॉप पे लोगो है, आपके इर्द गिर्द जो कोई प्रिंटिंग है, बॉक्सिंग पे, किसी प्रोडक्ट पे जो कुछ प्रिंट होके लगा हुआ है, कोई स्टिकर है, कहाँ पे सारा क्रिएट हुआ है, दैट इज all created by a graphic designer or using different graphic designing softwares. Okay. ओके सो अब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया आप लोगों को कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, तो हम थोड़ी आउटलाइन देख लेते हैं अब, ठीक है। टेक्स्ट पिक्चर्स कॉम्बिनेशन, ओके दैट्स द सेम थिंग। ऑलराइट, सो आपकी टोटल 9 क्लासेस होंगी, एज यू नो वीकेंड्स पे होंगी, ठीक है, और सेम टाइमिंग होगी आपकी। और सबसे पहला लेक्चर आपका जो कि आज का लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन सेशन एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। आपकी जो असाइनमेंट है ना, वो भी सेम वही होगी जो आप अपने लेक्चर में कवर करेंगे, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आपको लेक्चर जो है शेयर कर दिया जाएगा आफ्टर द लेक्चर, ओके। 12 रात 12 बजे से पहले आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा लेक्चर, ठीक है, ताकि आप अपनी वो प्रैक्टिस वगैरह असाइनमेंट्स क्रिएट कर सके। और जब आप लेक्चर क्रिएट सुन और जब आप लेक्चर ले रहे होंगे तब आपने साथ में सॉफ्टवेयर नहीं ओपन करना, ठीक है। आपने पहले लेक्चर पूरा देखना है, फिर बाद में जब आपको रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी तब आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को दोबारा से देख के अपनी असाइनमेंट क्रिएट करनी है, क्योंकि वही सारी चीज़ें जो हम लेक्चर में कवर करेंगे वही आपकी असाइनमेंट होगी, ठीक है। अब जैसे आज हम देखेंगे कि हमने सॉफ्टवेयर को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते, डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपकी असाइनमेंट पहले यही होगी कि आप किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। Everything will be provided. Each and every instruction will be given to you guys. Okay. और जो ग्रुप है वो आज के लेक्चर के बाद, अभी के लेक्चर के बाद ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पास कोई भी क्यूरी है लेक्चर से रिलेटेड जो आप लेक्चर के दौरान नहीं पूछ सके हैं, तो आप वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। वहां पे या तो मैं आंसर कर दूंगी या मॉडरेटर आपको आंसर कर देगी। ओके, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर होगा। सो एज आई वाज सेइंग, आपके फर्स्ट लेक्चर में हम डाउनलोड करेंगे अपना, आज देखिए हम किस तरह से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं, और कौन से सॉफ्टवेयर कवर होंगे। आपके 3 सॉफ्टवेयर कवर होंगे। आप अडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड करना देखेंगे, हम सीखेंगे। अडोब फोटोशॉप होगा और कैनवा होगा। कैनवा को हम ऑनलाइन करेंगे, लेकिन अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप को हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना देखेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर 2, ठीक है, जो हम नेक्स्ट सैटरडे करेंगे, ओके। वो हमारे पास होगा शेप्स एंड बेसिक टूल प्रैक्टिसेस, और वही आपकी असाइनमेंट होगी, ठीक है। फॉर श्योर जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं हमें उसकी बेसिक्स आनी चाहिए। डिजाइनिंग की बेसिक्स क्या है? शेप्स, एलिमेंट्स, राइट। सो आपको इसका मैं एक डेमो भी दिखा देती हूँ कि इस तरह की आपकी फर्स्ट ऑफिशियल असाइनमेंट होगी, ठीक है। क्या ये शेप्स होंगी, ठीक है। आपने ये सारी शेप्स को डिफरेंट टूल्स को यूज करके बनाना सीखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा थर्ड लेक्चर में पेन टूल, ओके। अब पेन टूल में क्या होगा, बेसिकली आपके पास वेक्टर ट्रेसिंग आएगी पेन टूल में, ठीक है। वेक्टर ट्रेसिंग हमारे पास 2 तरीकों से होगी, एक होगी क्विक ट्रेसिंग के जरिए और एक होगी मैनुअली यूजिंग पेन टूल। अब ये पेन टूल को हमने सेपरेटली इसलिए रखा है बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी टूल एंड ऑल्सो इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट टूल, ओके। इस अगर पेन टूल आप लोगों को आ गया तो आपके लिए डिजाइनिंग बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। सो इसलिए हमने टोटली एक सेपरेट लेक्चर रखा है पेन टूल के लिए कि हम उसमें वेक्टर ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है। वेक्टर ट्रेसिंग एज सच हम डिजाइनिंग को ट्रेस करना भी कह सकते हैं, और इस तरह से अभी जो आप ट्रेसिंग करेंगे वेक्टर पेन टूल को यूज करके वो इस तरह के कार्टून कैरेक्टर्स करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आगे एक तरीका ऑप्शंस को यूज करके, जैसे देखें डिफॉल्ट, हाई फिडिलिटी, लो फिडिलिटी, ये हम ऑप्शंस को यूज करके ट्रेस करें कोई चीज, और यहाँ पे हम पेन टूल को यूज करके कोई चीज ट्रेस करें। अब सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स नहीं होंगे, ये डिफरेंट डिजाइन्स भी होंगे आपके पास, ओके, कि आप किस तरह से उन्हें ट्रेस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ लेक्चर में हम बिजनेस कार्ड, फ्लायर एंड ब्रोशर, जैसे मैंने कहा पेन टूल अगर आ गया तो आप लोग डिजाइनिंग आसान से कर सकते हैं, तो पेन टूल की ग्रिप अच्छी आ गई आप लोगों को, तो हम फिर नेक्स्ट फॉरन से बिजनेस कार्ड स्टार्ट करेंगे। इस तरह के बिजनेस कार्ड के डिजाइन कवर होंगे, ठीक है। कैसे आप इस तरह के डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह के ब्रोशर के डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वही आपकी असाइनमेंट भी होगी।
नेक्स्ट फिफ्थ लेक्चर में हम पैकेज डिजाइनिंग और वेब टेम्पलेट डिजाइन करेंगे। ये देखिए, वेब टेम्पलेट डिजाइन क्या होता है, बेसिकली वेबसाइट का फ्रंट पेज का डिजाइन होता है, ठीक है, इस तरह के हम क्रिएट करना देखेंगे ये। और फिर ये देखें, और ये पैकेज डिजाइन, अब ये जो आपको डिस्प्ले नजर आ रहा है ना, बेसिकली 3D लुक वगैरह, ये जो है हम करेंगे अपने फोटोशॉप में। अब लेकिन जो इसकी सिंपल डिजाइनिंग है वो हम करते हैं इलिस्ट्रेटर में। ठीक है, तो ये साथ साथ आपको समझ आ जाएगी, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। हमने लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक जो सारी चीजें कवर करनी है, दैट विल बी ऑन इलिस्ट्रेटर, अडोब इलिस्ट्रेटर, ठीक है। फिर जो 6 लेक्चर से हम अपना न्यू सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी अडोब फोटोशॉप, ठीक है। वही फर्स्ट लेक्चर हम जिस तरह से आज इलस्ट्रेटर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना देखेंगे, उसी तरह से हम फोटोशॉप को भी डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना देखेंगे। ओके, और वही आपके फिर असाइनमेंट होगी। ऑलराइट, फिर लेक्चर 7 में हमारे पास फोटोशॉप में ज़्यादातर जो हमारा फोकस होता है वो फोटो एडिटिंग में होता है, और जो इलिस्ट्रेटर में हमारे पास ज़्यादा फोकस होता है डिज़ाइनिंग में। ऑल्दो हम फोटोशॉप में भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इलिस्ट्रेटर में फोटो एडिटिंग नहीं कर सकते। तो हम फोटो एडिटिंग है वो सारी हम किस में करते हैं, फोटोशॉप में करेंगे। ठीक है, तो ये फोटो एडिटिंग के टूल्स देखेंगे हम, और फिर साथ में डिज़ाइनिंग भी देखेंगे कि आप लोगों को दोनों सॉफ्टवेयर में डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो सोशल मीडिया पोस्ट, मतलब हम इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करेंगे, लाइक दिस। ओके, ये। और फिर जो 8 लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम काफी कुछ कवर करेंगे, ठीक है। दैट विल बी लोगो डिजाइन, यूट्यूब थंबनेल डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, ब्रांडिंग, मॉकअप एंड कैनवा। और अब आपने इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि एक आवर में करेंगे, हम ये एक आवर में नहीं करेंगे, हम ये 2 आवर्स में करेंगे। ये आपको मीन वाइल जब कोर्स हो रहा होगा तो ये सब एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि क्लासेस कैसे होंगी, ठीक है। जो 8 लेक्चर की क्लास होगी वो एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है, वो आपकी वीकडे में किसी दिन सेट करूंगी मैं, ठीक है। तो बाकी जो क्लासेस होंगी वो सारी आपकी वही वीकेंड्स में होंगी, ओके, सेम टाइमिंग पे। ओके, बस ये एक थोड़ा चेंज करेंगे हम, ठीक है, 8 लेक्चर को। तो आपको गाइड कर दिया जाएगा उसके बारे में। सो ये लोगो डिजाइन पे आ जाते हैं, ठीक है। आप ये इस तरह के पोस्टर डिजाइन्स, ठीक है, कवर करेंगे। यूट्यूब थंबनेल डिजाइन, ठीक है, ये लोगो डिजाइनिंग आ गई। ओके, ये इस तरह के साथ हम लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम amazon इमेज डिजाइन करेंगे कवर, एंड पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे। पोर्टफोलियो मतलब ये देखें, ये हमारे पास अमेजोन डिजाइन आ गया, ठीक है, अमेजोन पोस्ट डिजाइन। और ओवरऑल ये जो मैंने अभी तक शो किया पीडीएफ, ये पूरा, दिस इज बेसिकली अ पोर्टफोलियो, ठीक है। दो तरीकों से पोर्टफोलियो होता है, एक तो जो मैंने आपको ये बिहांस पे शो किया, ये एक वेबसाइट पे भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, और आप पावर पॉइंट को यूज करके अपने पीडीएफ में भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। और एक और वेबसाइट पे भी आप बना सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे भी, वो आपको जब हम कवर करेंगे तब ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, बेसिकली 4 to 5 किसी और क्लास का लेक्चर ऑलरेडी सेट है, ठीक है। 4 to 5 जो है किसी और बैच का है स्लॉट बिजी, तो आई दैट स्लॉट इज नॉट फ्री, सो आई कांट चेंज इट। ओके, ऑलरेडी बाकी सारे जो स्लॉट्स हैं बेसिकली ये मॉर्निंग से लेकर नाइट तक पूरे कवर होते हैं, सो इट्स हार्ड फॉर अस टू रीस्केड्यूल और योर स्लॉट क्लास टाइमिंग्स। ओके, आई नो इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि अफ्तारी से बिल्कुल पहले का टाइम है, सो बट आपको इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दिया जाता है कि आप लेक्चर को बाद में देख सकते हैं अगर आप क्लास मिस भी होगी, ठीक है। अटेंडेंस नहीं है क्लास में, बट आई विल ट्राई, आप लोग अपना मतलब कोशिश किया करेंगे लेक्चर को देखा करें, ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। Yes, I will tell you how you can make your portfolio on Behance. Okay? लास्ट लेक्चर में होगा, क्योंकि आपने पहले पोर्टफोलियो की सारी चीजें इकट्ठी करनी है। वो कैसे होगी, आप जो बीन वाइल पूरे मंथ में अपनी जो सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे, वो आपकी सारी चीजें इकट्ठी होती रहेंगी, और फिर एंड पे आप उन अपनी सारी असाइनमेंट्स को कहाँ पे ऐड करेंगे, एक पोर्टफोलियो में कंपाइल कर देंगे। सो ट्राई योर बेस्ट कि आप लोग असाइनमेंट्स अच्छी अच्छी से क्रिएट करें, ठीक है। सो अब हम अपना फर्स्ट लेक्चर के मेन पार्ट पे आते हैं, जो कि है
how we can download and install our software। ठीक है, सबसे पहले हमने अडोब इलस्ट्रेटर करना है, उसके लिए हम जाएंगे गूगल पे। ठीक है, और सबसे पहली चीज आपने क्या करना, कुछ लैपटॉप में विनरार ऑलरेडी होगा, और जिनमें नहीं है विनरार तो आप यहाँ से इस तरह लिखेंगे विनरार, एंटर। ये आपके एक्सेस में क्या कहते हैं, जब तक कोर्स है तब तक भी रहेगा, और इससे अलावा भी 1-2 मंथ्स तक रहेगा। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए जैसे हमने कहा था, उसका मतलब ये है कि आपके पास जो हम आपको लेक्चर शेयर करेंगे, आप उसे अपने पास डाउनलोड करके या तो अपने गूगल ड्राइव में सेव कर लें या फिर अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लें। ठीक है, कंप्यूटर में सेव कर लें या गूगल ड्राइव में कर, इट्स अप टू यू, तो वो फिर आपके पास लाइफ टाइम के लिए होगा। सो यू आर अलाउड टू डाउनलोड इट, बट इट्स ओनली फॉर योर ओन पर्सनल यूज, और यू आर नॉट अलाउड टू शेयर इट टू एनीवन एल्स। ओके, सो फर्स्ट क्या है, आपने विनरार सेलेक्ट करने, सर्च करना है, फिर यहाँ से डाउनलोड विनरार पे जाना है आपने, एंड सिंपली आपने यहाँ से ब्लू बटन पे क्लिक करके विनरार को डाउनलोड कर देना। ओके, जिनके पास है ऑलरेडी दैट्स फाइन, और सॉफ्टवेयर भी है दैट्स ऑल्सो फाइन, लेकिन अभी आपको मैं वर्जन्स बताऊंगी, अगर आपके उस वर्जन्स वाला सॉफ्टवेयर है तो ठीक है, वरना फिर आप वो न्यू वर्जन करेंगे। ठीक है, सो विंडार आपने कर लिया डाउनलोड इस तरह से, फॉर दोस्त जिनके पास नहीं है। ठीक है, जब आपने ये डाउनलोड कर लिया, बेसिकली हमने विंडार इसलिए करना है क्योंकि आगे जाके जब हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे वो एक कंप्रेस्ड फाइल होगी, उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना होगा, उसके लिए हमारे पास विंडार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने एक वेबसाइट है वहां पे जाना है, दैट इज गेट इनटू पीसी। ओके, ओके, सो एक और मैं आप लोगों को बात क्लियर कर दूं कि यू मस्ट हैव अ लैपटॉप और अ पीसी फॉर दी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। मोबाइल पे आपका काम नहीं होगा, मोबाइल पे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज कैनवा, वो काम करेगा। बाकी जो इलिस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप और अडोब इलिस्ट्रेटर के लिए मस्ट हैव अ लैपटॉप और अ पीसी। ठीक है, सो आपने गेट इनटू पीसी पे जाना है, एंड फर्स्ट लिंक आपने ये ओपन करना है। ठीक है, एंड देयर यहाँ पे आपके पास सर्च बार है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे अडोब इलस्ट्रेटर 2020। ओके, एंड देन सिंपली गो। ओके, अब आप वर्जन्स कौन से करते हैं, वर्जन हमारे पास कौन से होते हैं, ये 2020, 2019, 2022, 2023, ये हमारे पास वर्जन्स होते हैं। ओके, अब इसमें आपने कौन से करने हैं, आपने 2019 से ऑनवर्ड करने हैं, या तो आप 2019 कर लें, या तो आप 2020 कर लें, या तो आप 2022 कर लें। ठीक है, ये तीन आप आराम से कर सकते हैं, और 2023 लेटेस्ट में आ रहा है, 2023 और 2024, तो इट्स अप टू यू कि आपने करना है नहीं करना है, ये आपके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप करते हैं। ठीक है, सो अब हम ये कैसे पता चलेगा कि आपके लैपटॉप पे कौन सा वर्जन स्मूथली रन करेगा, कौन सा कंपैटिबल है आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग, उसके लिए हम जाएंगे अपनी सेटिंग्स में। ठीक है, आपने लैपटॉप की सेटिंग्स पे जाना है, देन आपने वहां पे लिखना है अबाउट पीसी। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि रैम कितनी है आपकी। ठीक है, आपकी रैम अगर 12 GB है तो आप 2019 भी कर सकते हैं, 2020 भी कर सकते हैं, 2022 भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ऑल्सो मैं 2021 इसलिए क्या कहते हैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि अभी आपके पास वेबसाइट पे 2021 का क्रैक वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन नहीं है, तो हमने तो फ्री वर्जन ही करना है। ठीक है, हमें बाय नहीं करना, तो इसीलिए 2021 हम स्किप करें। लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी 2021 पहले से डाउनलोडेड है तो वो ठीक है, लेकिन अभी के लिए जब आप न्यू कर रहे हैं तो आपने 2021 नहीं ट्राई करना। ओके, आपने 2019 करना है, 2020 करना है, 2022 करना है, इवन 2023 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास 12 और 16 GB है, वो कोई सा भी सॉफ्टवेयर का वर्जन ट्राई कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास 8 GB है, ठीक है, किसी के पास अगर 8 GB है तो वो 2019 आराम से कर सकता है और 2022 को ट्राई कर सकता है। ठीक है, ट्राई करने का मतलब मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने ट्राई करने से मुराद हुआ कि अगर आपने उसे डाउनलोड किया और आपका लैपटॉप स्लो हो रहा है या हैंग हो रहा है, दैट मीन्स कि वो कंपैटिबल नहीं है आपके लैपटॉप के, वो आपके लैपटॉप को स्लो कर देगा। ठीक है, तो फिर आपने उससे कम वाला वर्जन करना है। ओके, फिर हम आ जाते हैं 4 GB में। 4 GB में सिर्फ आप 2019 वर्जन कर सकते हैं आराम से, 2020 नहीं कर पाएंगे, वो स्लो कर देगा आपके लैपटॉप को। ठीक है, सो जिनके पास भी 4 GB रैम है
वो अपनी रैम को लेटर ऑन इंक्रीज करवाए। यू हैव 2 to 3 weeks फॉर दैट, क्योंकि हमने फिर फोटोशॉप भी डाउनलोड करना होगा और फोटोशॉप 4 GB में नहीं होता। ठीक है, तो जिनके पास भी 4 GB रैम है वो मिनिमम 8 करवा ले, मैक्सिमम 12 करवा ले। ठीक है, सो ये आप कहाँ से करवा सकते हैं? अभी शॉप से जाके अपनी रैम इंक्रीज करवा सकते हैं। ओके, सो जिनके पास 4 GB रैम है उनके लिए मैं कह रही हूँ। अभी के लिए जो 3 weeks आपके पास है, 2 to 3 weeks, इनमें आप 2019 वर्जन करेंगे डॉब इलस्ट्रेटर का, और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपका जो है रैम वाला मसला सॉल्व नहीं हो जाता। ओके, सो 2024, वो यस 2024 है, दैट्स फाइन। बस 2019 से ऑनवर्ड वर्जन होने चाहिए। किसी आपके पास 2020 आपका इसलिए हो गया क्योंकि या तो आपकी एसडी ज्यादा होगी, आपके पास ग्राफिक कार्ड होगा, ठीक है, या आपकी जो जनरेशन है वो अच्छी होगी, इंटेल कोर आपका अच्छा होगा, ये भी हो सकता है, इसमें ये डिफर करता है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप 2019 कर सकते हैं और 2022 आप ट्राई कर लें इसमें भी। ठीक है, 19 वाले में भी, अगर 4 GB में आप 2019 एंड 2020 ट्राई कर लें। ओके, 12 GB रैम प्लस SSD है, तो फिर आप अपना क्या कहते हैं, इवन 2023 या 2024 भी कर सकते हैं अगर आपके पास एसडी भी है अच्छी। ओके, सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया रैम के अकॉर्डिंग वर्जन्स को क्रिएट करना? विल यू guys be able to create it? ओके, नाउ नेक्स्ट हमने अब अपना क्या कहते हैं सिस्टम टाइप देखनी है। सबसे ज्यादातर सबके पास यही होती है 64 बिट्स। ठीक है, सो सब किसी के पास अगर 32 बिट्स है, इन केस बहुत रेयर होता है क्या हुआ आजकल किसी के पास 32 बिट्स हो, अगर किसी के पास है इन केस, तो आपने न्यू विंडो पूरी इंस्टॉल करवानी पड़ जाएगी आपको शॉप में जाके। ठीक है, सो आपने कितनी आपके पास होनी चाहिए, 64 बिट्स होने चाहिए। और जो विंडोज, अब विंडो पे अगर हम आते हैं तो विंडो आपके पास विंडो 10 से ऑनवर्ड होना चाहिए। अगर किसी के पास लैपटॉप अभी नहीं है, ठीक है, इट्स फाइन, आप अपने लेक्चर्स को देखें, नोट्स बनाने लेक्चर्स को देख के। ठीक है, जब आपके पास लैपटॉप अवेलेबल होगा, तो जैसे मैंने कहा आप लोगों के पास लेक्चर्स ऑलरेडी होंगे, ठीक है, आप अपने पास डाउनलोड करके रखेंगे, जब भी आपके पास लैपटॉप अवेलेबल होगा आप तब असाइनमेंट्स वगैरह क्रिएट करके फिर सेंड कर देगा। ओके, सो विंडो, अच्छा विंडो की बारी आती है तो विंडो 10 से ऑनवर्ड विंडोज करनी है आपने, या तो विंडो 10 हो, विंडो 10 प्रो, विंडो 11, विंडो 11 प्रो। अब विंडो 10 का भी एक स्पेसिफिक वर्जन होना चाहिए आपके पास। वो कैसे पता चलेगा कि विंडो 10 का कौन सा होना चाहिए? देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास विंडो 11 प्रो का ये स्पेसिफिक वर्जन है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास विंडो 10 का भी होगा, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया, जैसे आपके पास अगर जैसे मेरे पास 12 GB रैम है, ठीक है, और लेकिन मैंने फिर भी 2020 किया है, क्योंकि बहुत 2020 जो है वो बहुत स्मूथली रन करता है। सो आई ऑल्सो प्रेफर यू गैस कि अगर आपके पास रैम अच्छी भी है तो आप 2022 ट्राई करें, वो बहुत स्मूथली रन करेगा। ठीक है, सो 2022 एंड यहाँ से आपने ये सिंपली सिंगल क्लिक करना है। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे जो सारी चीजें मेंशन नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको वर्बली सब एक्सप्लेन कर दी है। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया आपके पास विंडो 10 वर्जन से, ये 1709 से लेटर वर्जन आपने करने हैं। ठीक है, तो फिर आपके जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही से डाउनलोड है, इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने ईमेल लिखा हुआ है विंडोज 7 विद सर्विस पैक 1। ठीक है, यहाँ पे विंडोज 7 के अगर आपके पास सर्विस पैक 1 है तब आप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखा है कि ज्यादा लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स हैं, उनको विंडोज 7 की वजह से इशू फेस करना पड़ता है। ठीक है, सो जो जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपना सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। ठीक है, विंडो 11 प्रो है तो आप आराम से कर सकते हैं फिर। ऑलराइट, सो विंडो 10 प्रो, यस, अगर आपका विंडो 10 प्रो है तो फिर कोई सा भी उसका वर्जन चल सकता है, सिर्फ विंडो 10 का स्पेसिफिक वर्जन का है मैंने। ठीक है, उससे लेटर वर्जन में आप आराम से कर सकते हैं। ओके, जब आपने सब चूज कर लिया, ठीक है, हमने 2020 वाला वर्जन करना है या 2023 वाला करना है, तो आपने वो चूज करना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन है आपके पास। आपने यहाँ पे सिंपली सिंगल क्लिक करना है। ओके, और फिर यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, डाउनलोडिंग माइट टेक हाफ एन आवर और एन आवर डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ठीक है, सो यहाँ पे भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ये।
ठीक है। सो ये देखिए, अब आपने जब विंडार डाउनलोड कर लिया होगा ना, तो आपकी इस तरह की फाइल शो गया। ये फाइल शो नहीं हुई तो मतलब वो फिर कोई इशू आ रहा है आपका। अगर सिंपल वाइट पेज आ रहा है तो फिर वो सही नहीं है, आपको उसे विंडार में करना पड़ेगा ताकि वो कंप्रेस फाइल हो और उसे आप बाद में एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, अब ये इस तरह से डाउनलोड होगा। ठीक है, और अभी तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर रही हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दिस फाइल। ठीक है, आपने इसको पूरा डाउनलोड होने देना है 1 आवर या ½ एन आवर तक। ठीक है, जब पूरा डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से शो होगा। डाउनलोड्स पे जाते हैं और ये देखिए ये इस तरह से शो होगा, लाइक दिस। फोटोशॉप, नॉट फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये देखिए इस तरह का ये शो होगा आपके पास आइकन। ठीक है, आपके पास ये फाइल आ जाएगी। जब आपके पास ये फाइल आ गई, पूरी कंप्लीटली डाउनलोड हो गई आपकी फाइल, आपने क्या करना है, आपने अपना जो वाईफाई है उसे ऑफ कर देना है। क्यों करना है आपने अपना वाईफाई ऑफ? बिकॉज हमने अब इंस्टॉलेशन पे आना है। डाउनलोडिंग का प्रोसेस यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे इंस्टॉल। इसे इंस्टॉल करने के लिए पहले हमने इस फाइल को क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना है। वाईफाई ऑफ करना है आपने। ठीक है, और 2-3 ऑप्शन है, उन्हें भी हम ऑफ कर देते ताकि कोई रिस्क ना रहे। ठीक है, इसलिए हम कुछ ऑप्शन है उन्हें भी ऑफ कर देंगे। तो हम उसके लिए वापस से सेटिंग पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन। ठीक है, एंड यहाँ से हम जाएंगे मैनेज सेटिंग्स पे, और इन दो ऑप्शंस को हम क्लोज कर देंगे। और जैसे हम क्लोज करेंगे तो आपको येस एंड नो की ऑप्शन आएगी। आपने येस करना है सिंपली। ठीक है, दोनों को। और फिर आपने एक और जगह करना है, फायरवॉल डिफेंडर। यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये इन दोनों को यूँ ऑफ कर देना है। एंड जस्ट टू बी क्लियर यू गाइस, कि मैंने भी यही सारे ऑप्शंस यूज किए, यही पूरा प्रोसेस मैंने यूज करके अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया। इट्स वर्किंग वेरी नाइस फ्रॉम 3 मोर देन 3 years, राइट? सो यही सारा प्रोसेस मैंने फॉलो किया और ये बहुत अभी तक बहुत सही चल रहा है, कोई इशू नहीं आया लैपटॉप में। ओके, बस एक चीज का आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो जो इंस्ट्रक्शंस मैंने बताई उनको फॉलो करना है। ठीक है, फिर आपका सब सही से हो जाएगा। दोनों ऑप्शंस को आपने क्लोज कर दिया, फिर यहाँ से ओके करेंगे। अभी मैं कैंसिल करी, बट आपने इन सबको ऑफ कर देना। ठीक है, आपने जब ये सारी चीजें ऑफ कर ली, फिर आपने जाना है अपने वापस से डाउनलोड पे। ठीक है, वाईफाई ऑफ रखना है आपने। फिर आपने यहाँ इलस्ट्रेटर पे जाके राइट क्लिक करना है। फिर आपने विनरार पे जाना है एंड एक्सट्रैक्ट टू गेट इनटू पीसी। ओके, फिर यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है, पासवर्ड आपने टाइप करना है 1 2 3 एंड ओके। आपका लोड होगा, मेरे पास ऑलरेडी फाइल है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन आ रही है, आपका लोड होगा और फिर आपके पास एक न्यू ये फाइल बन जाएगी। ठीक है, जब आपके पास ये फाइल बन जाएगी, आपने सिंपली इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करना है। फिर नेक्स्ट फाइल पे डबल क्लिक करना है और सिंपली सेटअप फाइल पे क्लिक करना है। तो फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा आराम से। ठीक है, नहीं मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप, आपको ना मैं एक रिकॉर्डिंग ये शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे, स्टेप को फॉलो करेंगे साथ साथ लैपटॉप को ओपन करके, तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, ऑल्सो एक और गाइड वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगी। इसमें ऑल द मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। एक और गाइड वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, उसमें भी डिटेल में फ्रॉम A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको डाउनलोड इंस्टॉल का प्रोसेस दोबारा से बताया गया है। ठीक है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दूंगी और गाइड वीडियो भी शेयर कर दूंगी। ओके, तो यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास ये देखिए इस तरह का ये ओपन होगा। ठीक है, तो अगर 2020 है तो इस तरह का कुछ ही ओपन होगा। ओके, ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा, नहीं तो आप डाउनलोड्स में जाके वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से अभी ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका ये इस तरह से लिखा आएगा और यहाँ पे क्रिएट न्यू ओपन। और यहाँ पे अगर आपके पास ब्लू क्लाउड शो, वैसे तो हमने ऑप्शंस क्लोज कर दिए हैं कि जिसकी वजह से ब्लू क्लाउड शो होता है। तो अगर आपको इनकेस ब्लू क्लाउड शो हो रहा है तो फिर आपने मैसेज करके बताना है कि क्यों हो रहा है।
मैसेज करके सेंड करना है, ठीक है, पिक्चर आपने सेंड करनी, इन केस अगर आपको यहाँ पे ब्लू क्लाउड शो हो रहा है तब आपने करना है वो। तो फिर आपको वहाँ पे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में गाइड कर दिया जाएगा कि आपकी क्या वजह है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ग्रे क्लाउड है, या आपके पास क्लाउड के साथ क्रॉस है, या कुछ भी नहीं है, तो तब ठीक है सब। मसला तब है जब आपके पास ब्लू क्लाउड शो होगा और एक मैसेज भी शो होगा कि 7 डेज का ट्रायल है। तो मतलब फिर वो आपका वो क्रैक वर्जन ही नहीं हुआ होगा, तो वो आपको गाइड कर दिया जाएगा कि वो क्यों ऐसा हुआ है। ओके, और ऑल्सो आपके इस पूरे प्रोसेस के बीच में अगर कहीं पे भी लॉगिन की ऑप्शन आ रही है कि वो आपसे आपका ईमेल मांग रहे हैं, तो आपने वो नहीं ऐड करना कहीं पे भी, ठीक है। यू डोंट हैव टू लॉग इन एनीवेयर। ऑलराइट। और ये तो विंडो का प्रोसेस था, जो कि अगर किसी के पास मैकबुक है तो उसके लिए आपको आपकी सेपरेट गाइड वीडियो है, ठीक है। अभी तो हमारे पास यहाँ पे विंडो वाला लैपटॉप है, इसलिए विंडो वाले लैपटॉप का प्रोसेस बताया है। जो मैकबुक वाले हैं उनके लिए भी आपको एक गाइड वीडियो वैसे शेयर की जाएगी जैसे विंडो वालों को की जाएगी, ठीक है। तो फिर आप उसको फॉलो करके अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। Alright, so is everyone clear about how you can create, download and install your softwares? Okay. नाउ अब हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा सा अपना सॉफ्टवेयर के टूल्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट न्यू पे, ठीक है। अब फॉर श्योर जब भी हम कोई ड्राइंग या कोई पेंटिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, हमें या तो पेपर चाहिए होता है या कैनवस चाहिए होता है, राइट, जिसके ऊपर हमने ड्रॉ करना होता है सारा कुछ। तो उसी तरह से हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग में भी हमने कोई डिजाइन क्रिएट करना है तो हमारे पास इसी तरह का कोई कैनवस या पेपर होना चाहिए। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में हम उसे आर्ट बोर्ड कहते हैं कि जिसके ऊपर हम अपना डिजाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू पे जाएंगे। तो क्रिएट न्यू पे जब हम जा रहे हैं तो ये जो पैनल है हमारे पास, बेसिकली ये पैनल हमें एक आर्ट बोर्ड बना के देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपनी मर्जी से सारी चीजें सेट करते हैं कि जैसा हमें आर्ट बोर्ड चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी यू नीड टू फॉलो सर्टेन थिंग्स। जैसे हमारे पास सबसे पहले डायमेंशन में आ जाता है पिक्सेल्स, पॉइंट, इंचेस, फीट्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। अब ये क्या है हमारे पास, बेसिकली हम जब भी ग्राफिक डिजाइनिंग में कुछ क्रिएट करते हैं, या तो हम उसे सिर्फ ऑन स्क्रीन रखते हैं, मतलब हमने कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन की है तो वो ऑन स्क्रीन रहेगी, चाहे वो लैपटॉप में हो, चाहे वो कंप्यूटर पे हो, चाहे वो आपके फोन पे हो या टैबलेट पे हो, जहां पे भी आप उसे ट्रांसफर करेंगे वो ऑन स्क्रीन ही रहेगी, ठीक है। तो जो चीज हमारी ऑन स्क्रीन रहती है उसे हम हमेशा पिक्सेल्स में क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज जो हमने प्रिंट करवानी है, जैसे बिजनेस कार्ड हम अगर डिजाइन करेंगे तो फॉर श्योर उसका प्रिंट होगा, फ्लायर को करेंगे उसका भी प्रिंट होगा, ब्रोशर को करेंगे उसका भी प्रिंट होगा। तो जिस चीज का आपने प्रिंट करवाना है उनके लिए हम बाकी चूज करते हैं, ठीक है। क्या होता है, अब उनके साइज के अकॉर्डिंग होता है। अगर कोई बैनर है जो बहुत बड़ा सा कोई बैनर होगा, उसके लिए या तो हम फीट्स लेंगे, ठीक है, या हम यार्ड्स लेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइज है आपकी उस चीज का, ठीक है। अगर कोई छोटी मोटी चीज है जैसे बिजनेस कार्ड हो गया, उसके लिए हम इंचेस लेंगे या सेंटीमीटर लेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास फ्लायर है, ब्रोशर्स है, उसके लिए भी हम इंचेस या सेंटीमीटर लेंगे। तो ये साथ साथ आपको मैं बताऊंगी कि कोई न्यू चीज हम क्रिएट करने लगे तो उसका आर्टबोर्ड भी किस तरह से क्रिएट होगा, ठीक है। हर चीज का आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे हम पहले डिजाइन करने से पहले, ओके। ये तो हमारे पास यहाँ पे हम डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो हमने अभी जो क्रिएट करना है ऑन स्क्रीन करेंगे, तो हमने पिक्सेल्स लिया। फिर हमारे पास आ जाता है उनका विथ और हाइट, ठीक है। विथ हम यहाँ पे ले लेते हैं 1080 बाय 1080, ठीक है। बेसिकली ये जो साइज है ना हमारे पास 1080 बाय 1080, ये हमारे पास नॉर्मल सोशल मीडिया पोस्ट का साइज होगा, ठीक है। वैसे अब तो काफी सारे डिफरेंट हो गए, लेकिन एक हमारे पास नॉर्मल जो साइज वो ये है 1080 बाय 1080। रिपीट, ओके। पिक्सेल्स हम तब यूज करते हैं जब हमने ऑन स्क्रीन काम करना होता है, ठीक है। जो चीज हमने ऑन स्क्रीन रखनी होती है, बाकी जो सारी ऑप्शंस है वो हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं कि हमने उस चीज को प्रिंट करवाया, तो इसलिए हम वो यूज करते हैं। ये साथ साथ जब हम क्रिएट करते रहेंगे ना न्यू न्यू चीजें, तो ये और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है कि आपने अपने आर्ट बोर्ड को किस तरह सेट करना है। आपने उसे वर्टिकली सेट करना है या आपने उसे हॉरिजॉन्टली सेट करना है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास वर्टिकल होता है वो हमारे पास पोर्ट्रेट मोड होता है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है वो हमारे पास होता है लैंडस्केप मोड,
ठीक है। तो अभी साइज सेम है तो ये पोर्ट्रेट मोड होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हमने इसका साइज चेंज किया, जैसे मैंने इसको 90 कर दिया, ठीक है, तो इसको अब हम चेंज कर सकते हैं, या तो हम इसे पोर्ट्रेट मोड में सेट कर देंगे या तो हम लैंडस्केप में करेंगे, जब हमारे आर्ट बोर्ड का जो साइज है वो रेक्टेंगल में होगा। लेकिन अगर वो स्क्वायर में होगा तो वो हमेशा पोर्ट्रेट ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे कि हमने कौन सी चीज के लिए पोर्ट्रेट मोड चाहिए और कौन सी चीज के लिए हमें पिक्सल मोड चाहिए। ठीक है। फिर आर्टबोर्ड आ जाता है। आर्टबोर्ड हमारे पास यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे डिज़ाइन क्रिएट करने हैं। फ्रंट एंड बैक करना है तो हम दो लेंगे, अगर उससे ज़्यादा करें तो हम एक साथ पोस्ट डिज़ाइन करें तो हम उससे ज़्यादा आर्टबोर्ड लेंगे, नहीं तो हम सिंपली अभी एक ही चाहिए तो हम एक लेंगे। अब ब्लीड एरिया हम तब कवर करेंगे जब हम बिजनेस कार्ड करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलर मोड। कलर मोड में हमारे पास एक होते हैं आरजीबी कलर मोड और एक होता है सीएमवाई के कलर मोड। अब सेम जिस तरह से हमने पिक्सल्स का देखा ना कि जो चीज़ हमने ऑन स्क्रीन रखनी होती है उसके लिए हम पिक्सल सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी यहाँ पे जो चीज़ हमने ऑन स्क्रीन रखनी होती है उसके लिए हम आरजीबी लेते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ओके। सो जो चीज़ ऑन स्क्रीन रखनी है उसके लिए हम रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी लेते हैं, और जो चीज़ हमने प्रिंट करवानी है उसके लिए हम लेते हैं सीएमवाई के कयान मैजेंडा येलो एंड ब्लैक। उस प्रिंट के लिए हम लेंगे सीएमवाई के, और ऑन स्क्रीन के लिए हम लेंगे 8 GB। ठीक है। अभी हमने ऑन स्क्रीन काम करना है तो हमने 8 GB लिया। और ऑल्सो अगर जब हम इसे यूं चेंज करते हैं, अच्छा आपके पास ना 1 मिनट रह गया है, इसके बाद जो मीटिंग है वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी, तो आपने सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है। ठीक है। अच्छा, सो क्या बता रही थी मैं, वेयर वाज आई? आरजीबी कलर मोड एंड सीएमवाई के कलर मोड, या ऑन स्क्रीन के लिए और फिर सीएमवाई के हमारे पास प्रिंट के लिए होते थे बस। हाँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास रास्टर इफेक्ट था। अब रास्टर इफेक्ट में क्या होता है, अब हम यहाँ पे हमेशा 300 लेंगे, ये सीएमवाई के प्रिंट के लिए हम यहाँ पे 300 लेंगे, ताकि हम जो भी क्रिएट करें चीज वो क्लियर ही क्रिएट हो। ओके। और फिर यहाँ पे हम सिंपली क्रिएट कर देंगे। जब हमने सब सेट कर लिया तो हम जब क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये जो वाइट बॉक्स है, दिस इज आर्टबोर्ड 1080 बाय 1080। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम